Hello dear students, today I am going to continue chapter 3 of Organization of Commerce and Management Standard 11 Commerce, session number 7 of Business Services 2, that is banking. Under this banking, we already completed the different type of the accounts, right? Before that one, the functions, and in the last sessions, the services. Okay, total 7 services we discussed, which are given or which are here through the bank. So now let's move to some of the other points that is important nowadays. That is e-banking. Here it is. E-banking, that is electronic banking. What does it mean? What is the meaning of this e-banking? So here, for 1 mark, 2 mark. E-banking means electronic banking. In this kind of banking, transactions are done with the help of electronic media instead of physical method. Here nowadays, the transactions are done through the mobile phones. Already we discussed that RTGS and NEFT. Okay, so RTGS, for that you have to visit, but for NEFT you can't. Means you, if you don't want to visit the bank, you can easily send money or transfer money or pay the amount through the NEFT, through this particular electronic media, through the internet banking, through the electronic banking. कई सारे इसके वर्ड्स हैं, लेकिन keep in mind the thing that in the e-banking the payments is done or transactions are done with the bank with the help of this electronic media. There is no need to visit the bank. Physical method को हम इग्नोर करते हैं यहाँ पर और हम एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को. सो द डेवलपमेंट इन बैंकिंग प्रोसेस इज सीन एट 3 फेसेस. ओके, जो डेवलपमेंट हुआ, राइट, ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन पास्ट में जाती है 90s 80s में, राइट. वैसे तो ये बैंकिंग सेक्टर कई सालों से चलता है, लेकिन थोड़ा इन्फॉर्मेशन जो 90s में था उससे शुरू करके डेवलपमेंट कैसे हुआ वो देख लेते हैं. सो हियर इट इज द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग प्रोसेस. द फर्स्ट वन, ट्रेडिशनल प्रोसेस. The transactions of bank were done traditionally and the ledgers were maintained for entries of the accounts. Now you know that one, what is the particular accounting system. Okay, आपको मालूम भी पड़ गया, डेबिट क्रेडिट डिफरेंट थिंग्स आर देयर. सो इन इनिशियल इन द टाइम पीरियड ऑफ 90s, हम बहुत दूर नहीं जाते, 90s 2020 सेंचुरीज का हम अगर बात करें तो वो 20th सेंचुरी जो थी वहाँ पर ट्रेडिशनली जो भी काम होता था, ट्रांजेक्शन होता था, उसको किसी एक लेज़र में, लेज़र यानी एक पर्टिकुलर मेन बुक, चैप्टर नंबर 8-9 में आप देखोगे उसको, राइट, अकाउंटेंसी में. लेकिन अभी के लिए याद रखो वो अकाउंट बुक है, मेन बुक है अकाउंट की. तो वो लेज़र मेंटेन किया जाता था, डिफरेंट एंट्रीज, ओके, विड्रोवल्स, डिपोजिट्स, एफडीज, उसमें सब कुछ रहता था. वो एक ट्रेडिशनल प्रोसेस था. In addition to this, any other work such as keeping vouchers or checking the specimen signature, etc., was done without any type of machines. So शुरुआती दौर में ऐसा होता था कि you have to visit the bank. बैंक में आप जाओ, whatever the money you deposit, उसके एक एंट्री बुक में लिखी जाती थी. एंड ऑफ द डे whenever you will withdraw, उसकी एंट्री भी लिखी जाती थी. पासबुक नहीं थी, दैट फिर पासबुक आई, उसमें सब एंट्री आ गई. और अनदर थिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ द वाउचर्स वेर देयर. ओके, डिपॉजिट स्लिप्स होती थी, उसकी जगह वाउचर भी हुआ करते थे. आपको ये भी मालूम, वाउचर्स दैट इज एविडेंस, तो उसको रखा करते थे. और एक मूवी भी मैंने बोला था, मीन्स वेब सीरीज देखने के लिए, वहाँ वाउचर का ही यूज़ हुआ था, राइट, स्कैम में, तो वो भी आपको मालूम है. तो वाउचर्स जो है वो वाउचर्स रखते थे अपने पास, उसका यूज़ करते थे. और समटाइम्स जब भी आप पैसे विड्रॉल करने जाते थे तब कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ही हो, इसके आइडेंटिटी के लिए एक स्पेसिमेन सिग्नेचर लिया जाता था. तो चेकिंग द स्पेसिमेन सिग्नेचर एट दैट टाइम. सो एवरीथिंग दिस टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन वाज देयर इन ट्रेडिशनल, और दैट टाइप particularly this process was done in the traditional way. Okay, but machines were not there, so that was the main problem. But वैसे भी पहले मशीन कहाँ हुआ करते थे, फिर भी सब काम होता था. सो एट दैट टाइम मशीन्स वेर नॉट देयर एंड द होल प्रोसेस, ट्रेडिशनल प्रोसेस वर डन विदाउट द हेल्प ऑफ मशीन्स. सो दिस इज द वन ट्रेडिशनल प्रोसेस जो ई बैंकिंग के पहले फिजिकल मेथड में हुआ करता था. उसके बाद आया कनेक्टिंग कंप्यूटर्स थ्रू नेटवर्क. 90s जो निकल गया, 1991, हम 2000 के नज़दीक आते गए. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, बैंकिंग सेक्टर थोड़ा ऊपर आया, थोड़े बहुत डेस्कटॉप आने लगे, राइट. सॉफ्टवेयर्स उस टाइम पे सब अलग हुआ करते थे. ओके, प्रिंटर मशीन भी आपने देखे होंगे, डॉट मैट्रिक्स उसको बोला जाता था. अभी तो हाई फाई आ गए, 3-in-1 आते हैं, लेकिन उस टाइम पे डॉट मैट्रिक्स था. धीरे धीरे प्रिंट निकलता था, घंटों तक प्रिंट चालू रहता था. आपको ये सब आपने देखा होगा, कई गवर्नमेंट ऑफिस में भी अभी वो डॉट मैट्रिक्स चलते हैं, लेकिन अब वो
आउटपुट बहुत कम देते। सो यहाँ पर कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया नेटवर्क के साथ। सो इन द ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ बैंकिंग ऑल कंप्यूटर्स लाइंग इन द सेम ब्रांच आर कनेक्टेड थ्रू नेटवर्क। सो पहले मशीन्स नहीं थे, कंप्यूटर्स नहीं थे, उसके बाद थोड़ा बहुत कंप्यूटर्स का इंट्रोडक्शन हुआ 90s के बाद। तो विद इन द पर्टिकुलर बैंक, एक ही बैंक में जो कंप्यूटर थे उसको एक पर्टिकुलर नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करते थे। ओके, एक मेन पीसी होता था, उससे सब कनेक्ट होते थे, यानी कि वॉट एवर द ट्रांजेक्शन यू विल हैड इट विल बी देयर इन ऑल द कंप्यूटर्स। ओके, ऑल्सो मैनेजर्स जो भी है, कैशियर, सबके कंप्यूटर में वो इन्फॉर्मेशन जाती थी। तो ब्रांच के जो भी है, सेम ब्रांच के, वो कनेक्ट होते थे थ्रू द नेटवर्क। और ये एक कंप्यूटर का प्रोसेस है, एक पर्टिकुलरली मेन होता है कंप्यूटर, उससे सबको नेटवर्क से हम ज्वाइन करते हैं। उसका स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट में भी आया होगा, 10th स्टैंडर्ड तक के सब कुछ था। सो वन ऑफ दिस कंप्यूटर्स अमंग ऑल कंप्यूटर्स ऑफ द सेम ब्रांच वाज कॉल्ड द सर्वर, राइट। तो यही आप याद रखना कि जो भी कंप्यूटर्स है उसमें से जो मेन कंप्यूटर है सेम ब्रांच में, राइट, जो ऑल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, उसका नाम हम देते हैं सर्वर, वर्क स्टेशन जिसको बोला जाता है। ओके, तो सर्वर के थ्रू सभी जगह जाता था। सो इन दिस वे कनेक्टिंग ऑल कंप्यूटर्स ऑफ द सेम ब्रांच इज पॉसिबल एंड बैंकिंग प्रोसेस बिकम ईजी एंड स्पीडी। सो ये याद रखो कि एक सर्वर जो हम यहाँ ज्वाइन करते थे, उससे सभी कंप्यूटर्स चलते थे और सब इन्फॉर्मेशन वही कंप्यूटर में फीड हो जाती है। दैट मीन्स कि डिफरेंट टाइप ऑफ द इन्फॉर्मेशन वर स्टोर्ड, राइट, इन द सेंस ऑफ द फॉर द डॉक्यूमेंट्स, लेजर्स में हम लिखते थे, वैसे कंप्यूटर में हम स्टोर करते थे। सो कनेक्टिंग ऑल कंप्यूटर्स एंड देन आफ्टर, ये सब सेम ब्रांच के लिए होता था। बारी बारी में इसलिए रिपीट करता हूँ कि पहले ये सब होता नहीं था। अभी तो क्या है, ये पूरा एसबीआई बैंक है, तो उसका पूरा ऑल ओवर इंडिया में जो भी है वो कनेक्टेड है नेटवर्क के थ्रू। तो यहाँ ट्रांजेक्शन हुआ तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं भी मिल सकती है, नेटवर्क के थ्रू कनेक्शन है। लेकिन विद इन द ब्रांच वो पहले अवेलेबल था, और फिर इसी वजह से बैंकिंग प्रोसेस बिकम वेरी इजी, स्पीडी। ओके, वी कैन एबल टू स्टिल वी आर एबल टू गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर ऑल्सो। ओके, अब तो थोड़े हाई फाई आ गए, आपको मालूम भी है। थोड़ा प्रोसेस आगे ले जाते हैं हम, दैट इज द थर्ड वन, यूज ऑफ इंटरनेट। बैंक कंप्यूटर्स वेर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट। तो यहाँ सर्वर से ज्वाइन होते थे, राइट, ऊपर सेकंड में दिखा, अब उसको इंटरनेट से ज्वाइन कर दिया। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच बैंकिंग प्रोसेस बिकम वेरी इजी एंड स्पीडी। तो यहाँ पर तो सर्वर से ज्वाइन हो गए सिर्फ जो एक ब्रांच के थे वो कंप्यूटर। यहाँ थर्ड में आप देख सकते हो कि यूज ऑफ इंटरनेट वेर स्टार्टेड, ओके, दैट पर्टिकुलर 2000, ओके, इन द time period newly mobile were launched after 2000, and in that time period computers were accepted all over the India in every field, even in railways, even in LICs, even in banking system. Okay, some oppose this technology, but nowadays it is simple. Without technology we are not able to do the different type of the things under the particular banking system. Transactions होते ही नहीं है, आपको मालूम है। So easily कि as a result of which banking process become more and more speedy, and also speedily, easily they can complete the work. So this is the one process, that is banking process। धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट हुआ। सो इसको हम बोलने के लिए बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग प्रोसेस वो स्टार्टेड थ्रू द ट्रेडिशनल प्रोसेस, एंडेड विद द इंटरनेट, बट स्टिल इट इज़ नॉट एंडेड, राइट, अभी भी चालू है, उसमें कुछ ना कुछ नया आता जाता रहता है। तो चलते आगे 3.5 ई बैंकिंग में दूसरा पॉइंट देखते हैं, इंटरनेट, कोर बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। ये तीनों की शॉर्ट नोट है, दैट याद रखना। तो पहले चलते हैं, इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। बैंक ट्रांजेक्शन्स आर डन थ्रू इंटरनेट। फॉर दिस काइंड ऑफ द सिस्टम बैंक हैज ऑल्सो सेटअप arrangement like e-corner, electronic corner and e-gallery. Firstly it was started by the central bank, State Bank of India, with the help of the central bank यानी RBI की हेल्प से सबसे पहले ई कॉर्नर और ई गैलरी चालू की है। वहाँ पर देयर इज़ नो नीड टू विजिट द पर्टिकुलर बैंक, बैंक के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, बैंक के बाहर ही एक ये ई कॉर्नर और ई गैलरी रखा हुआ। तो उसमें से आप पासबुक एंट्रीज है, फिर वैसे छोटी बहुत जो भी आपको इंक्वायरी करनी है वहाँ से हो जाती थी। ओके, यू कैन विड्रॉ द मनी इजीली विदाउट विजिटिंग द बैंक। सो ये ई कॉर्नर, ई गैलरी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अभी भी अलग अलग बैंक्स अलग अलग नाम से ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करते ही है। सो ये इंटरनेट हुआ तो इसकी वजह से जो भी ट्रांजेक्शन हुए इंटरनेट के, सो ये सिस्टम की वजह से ई कॉर्नर, ई गैलरी स्टार्ट हुई। यहाँ पर आपको मालूम है जब भी आप एसबीआई विजिट करते हो वहाँ लिखा ही होता है ई कॉर्नर एंड ई गैलरी, दोनों में से कोई एक होता है। ओके, हर सिटी में एक आध ऐसा खुला हुआ है अलग अलग एरियाज में।
सो इन दिस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स जब ये ई कॉर्नर ई गैलरी होता है राइट इंटरनेट के थ्रू, द बैंक प्रोवाइड्स यूनिक कोड पासवर्ड टू द कस्टमर्स। सबके पास ये होता ही है, जब इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बैंक, तो नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, सबके लिए पासवर्ड बैंक दिया करती है, और उसको हम अपडेट भी करते हैं अपनी तरह से। यू कैन यूज़ थ्रू द मोबाइल, यू कैन यूज़ थ्रू द लैपटॉप, कंप्यूटर्स, किसी से आप उसको एंट्री करवा सकते हैं। लेकिन सिंपल है कि सेफ्टी पर्पज से देखा जाए तो पासवर्ड थोड़ा यूनिक होना चाहिए, अलग होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, आपको सबको मालूम ही। सो थ्रू दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ द ई-कॉर्नर ई-गैलरी, बैंक प्रोवाइड डिफरेंट फैसिलिटीज ऑल्सो थ्रू द इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम स्टार्टअप टू गिव द बेस्ट सर्विस टू देयर कस्टमर्स, देयर क्लाइंट्स। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पर ये याद रखो कि बैंक प्रोवाइड यूनिक कोड, उसको हम पासवर्ड बोलते हैं, उसको हम 4 डिजिट का होता है। अब तो देखो प्राइवेट बैंक ने 6 डिजिट का पासवर्ड भी कर लिया। फॉर एग्जांपल कोटक महिंद्रा है राइट, उसमें आप अगर कोई ऐप यूज़ करते हो तो 4 कॉमन है, तो उन्होंने 6 डिजिट का पासवर्ड रखा हुआ है राइट। कई बार अब तो ऐसी भी फैसिलिटी है व्हेन यू आर यूजिंग मेकिंग पेमेंट थ्रू द क्रेडिट कार्ड और अदर्स। ओके, व्हेन द पर्सन, समझ लो कि मैंने ये कार्ड यूज़ किया, कार्ड दूसरे का है, तो उसके ऊपर एसएमएस आएगा, दो आई हैव दैट पासकोड, मेरे पास पासकोड है, पासकोड एंटर करते पेमेंट भी करता हूँ, फिर भी एक अलग से कोड डालना पड़ेगा, दैट इज़ द पासवर्ड। ओके, वो आपको चालू करवाना पड़ता है फैसिलिटी देन एंड देन। तो पासवर्ड कहाँ जाएगा, 4 डिजिट 6 डिजिट का, जो बंदे का फ़ोन नंबर रजिस्टर है उसी के अकाउंट में जाएगा, उसी के एसएमएस में जाएगा, फिर उसका हम यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी है, सिक्योरिटी बढ़ गई है, तो हम बोल सकते हैं कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। सो इन दिस टाइप ट्रांजेक्शन्स आर डन इन 2 वेज। हमको मालूम है, पहले से ही आप सीख चुके हो, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। यहाँ नाम दी है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जिसमें मनी इन्वॉल्व है और एक में नहीं है। सो द नेम सेम एज द इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हमने एक्टिविटी देखी थी, इसलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज करता हूँ। दिस इज द financial transaction and non-financial transaction. Some of the transactions are related to your withdrawal, deposits, payments, right? And some of the financial transactions are directly done, and some of the non-financial transactions are there. So let's look after कि कौन कौन से financial transaction है। Here financial transaction में हम देखते हैं, here bank account holder transfer money from his bank account to another bank account of the other bank account holder। अब यहाँ एक सिंपल सा चीज़ है, हमने RTGS NEFT किया है, मैं समझ चुके हैं। तो फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट द मनी इज ट्रांसफर, बट यहाँ पर एक और वर्ड लिखा है कि टू द अदर बैंक अकाउंट, यानी सेम बैंक नहीं होगी। यू आर ट्रांसफरिंग मनी, यू आर सेंडिंग मनी फ्रॉम योर अकाउंट टू अदर अकाउंट, बट सेम बैंक नहीं है, अदर बैंक भी है। तो ये भी पॉसिबल है थ्रू द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द इंटरनेट, एंड दिस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जब आप मनी ट्रांसफर करते हो उसको हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं बोलते हैं, सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है। एक अकाउंट होल्डर दूसरे अकाउंट होल्डर को पैसे देता है, और कोई भी बैंक होती है उसे हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलते हैं। यहाँ पर पेमेंट्स भी होता है, अलग अलग पेमेंट्स लाइक टेलीफोन बिल, टैक्स बिल, अदर सच पेमेंट्स आर इंक्लूडेड इन दिस वन। ये एग्जाम्पल है, बाकी इसमें अब तो सब कुछ आ गया है। अब तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में आप पेट्रोल भी भरवा सकते हो राइट, आप पेमेंट कर सकते हो अपने मोबाइल बिल का, आप टेलीफोन बिल पे कर सकते हो, गैस बिल पे कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हो। यू कैन पे द फीस नाउ ऑनलाइन, okay, there is no need to visit the school. You can pay the different type of the amounts of taxes, okay। अब तो फास्टैग आ गया है, तो there is no need to pay the amount at toll plaza, आप सीधा ही निकल सकते हो राइट। ये भी इन्फॉर्मेशन है फास्टैग से, वो भी ऑनलाइन होगा, सीधा मैसेज जैसे भी कट होगा विद इन 1 मिनट यू विल गेट द SMS राइट, यू विल डिडक्टेड अमाउंट फास्टैग फ्रॉम सो एंड सो। तो अगर आप दूसरों की कार लेके जाते हो तो उसको भी मालूम पड़ता है मेरी गाड़ी कहाँ घूम रही है, कहाँ पर है। ये सब फैसिलिटी है, ओके। बेस्ट सर्विस फास्टैग दे रहा है आपको। सो तो कई सर्विसेज है जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में हम ऐड करते हैं, पेमेंट करते हैं, और उसका हम यूज़ करते हैं हमारे पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो करते हैं उसके साथ, इंटरनेट का या कोई भी। हाँ, इस सब में ये ज़रूरी है कि नेटवर्क, अगर आप कुछ भी काम करते हो नेटवर्क जो है कंप्यूटर में राइट, घर से करते हो, लैपटॉप डेस्कटॉप से, तो ज़रूरी है। फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन में नेसेसरी है कि इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, मोबाइल से करते हो, ये सब में ओके। सो ये सब जुड़ा हुआ है नेटवर्क के, इसीलिए आपको सीधी इन्फॉर्मेशन ऑन द स्पॉट मिल जाती है। तो ये थे सब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। नाउ नेक्स्ट वन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। In this kind of transaction, financial transaction is not included, but the account holder does the transaction like getting account statement। यानी कि यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कोई नहीं, कोई रिसीव, कोई पेमेंट नहीं है पैसों का। यहाँ नॉन फाइनेंशियल है, और नॉन फाइनेंशियल में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो यहाँ पर इंक्लूड होता है यू विल गेट द अकाउंट स्टेटमेंट। अब आपके पास पासबुक नहीं है बिकॉज सी सेव पेपर, तो हम पासबुक नहीं मंगवाते, तो शायद इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़े, तो यू कैन गेट द स्टेटमेंट बाय पेइंग मनी
कई बार सी करंट अकाउंट होल्डर के लिए फ्री होता है, सेविंग अकाउंट होल्डर के लिए 25 रुपीज़ या 50 रुपीज़ वॉट एवर। एक्चुअली चार्जेस कई बार नहीं भी लिए जाते, कई बार डायरेक्टली अकाउंट से कट किए जाते हैं एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड। ओके, सो गेटिंग अकाउंट स्टेटमेंट, यू विल गेट द चेकबुक, तो यू कैन गिव द चेकबुक रिक्वेस्ट 10, 20, 30, 40 जो भी है। मोस्टली पहले ज़्यादा आते थे, करंट अकाउंट होल्डर के लिए 100 का आता था, अब 50 हो गया है। ये जो चेकबुक का जो पर्टिकुलर साइज़ होता है वो तो सेम है, लेकिन उसकी जो पर्टिकुलर लिप्स होते हैं उसके हम बोलते हैं कि वो पहले ज़्यादा आया करते थे। कागज़ का उपयोग कम करने के लिए हम कम से कम यूज़ करें तो अच्छा है, पेमेंट ऑनलाइन करें तो वो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, पिन चेंज करना, यू कैन विजिट नाउ द ATM टू चेंज द पिन। ओके, अगर नहीं करना तो डायरेक्टली आप अपने उसकी बैंक की ऐप से भी कर सकते हो। उसके बाद स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट, कई बार चेक हमने किसी को दिया, गुम हो गया, बैरर चेक है, नहीं बैरर चेक यानी कोई भी उसको विड्रॉल ले सकता है। आइडेंटिटी अब कंपलसरी है, यानी प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई चेक में कोई मिस्टेक आपको लगती है, शायद पेमेंट करना है लेकिन बैलेंस नहीं है ऐसा आपको लगा, सो यू कैन स्टॉप द पेमेंट, सो वो भी रिक्वेस्ट आप कर सकते हो। एंड ऑल्सो सम ऑफ द अदर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आते हैं। सो दीज आर सम इंटरनेट रिलेटेड और द कोर बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। वन बाय वन आई विल गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस वन, बट अंडर दिस ई बैंकिंग, दिस इज द फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग। ओके, नेटवर्क के थ्रू चलता है, यानी इन द सेंस ऑफ दैट कनेक्टेड और कनेक्शंस। नाउ हियर द फॉलोइंग फंक्शंस बिकम्स ईजी ड्यू टू द यूज ऑफ इंटरनेट इन बैंक। तो इंटरनेट का यूज़ करते हैं हम, ये इंटरनेट हमने जो ऊपर देखा ना, इसके अंडर में हम फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल है, और उसी की वजह से अब हम ये इंटरनेट के लिए वजह से ये पर्टिकुलर बैंक का ट्रांजेक्शन यूज़ करते हैं। पहला है उसमें कोर बैंकिंग है, दूसरा है इलेक्ट्रिक बैंकिंग है, और तीसरा है मोबाइल बैंकिंग। ओके, तो तीनों शॉर्ट नोट के लिए जरूरी है। कोर बैंकिंग का फुल फॉर्म भी है, उसको भी याद कर लेना, वो भी जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, कोर बैंकिंग। मीनिंग ऑफ कोर बैंकिंग, कोर क्या है? CORE, कोर मीन्स, कोर बैंकिंग मीन्स, याद रखना, सेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड, O ऑनलाइन, आर रियल टाइम, E एक्सचेंज, यानी सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। अरे पूरा एक सेंट्रलाइजेशन है, एक ही जगह से ये होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज। तो सेंट्रलाइज ऑनलाइन है, नेटवर्क के इश्यू, नेटवर्क के थ्रू चलेगा, कनेक्शन के थ्रू, राइट, सर्वर के थ्रू रियल टाइम एक्सचेंज होता है। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द कोर। वी आर एट द लास्ट स्टेज ऑफ द पर्टिकुलर चैप्टर। उसके बाद सिर्फ बैंक की अलग थोड़ी सर्विसेज जो बाकी हम उसको डिस्कस करेंगे। सो कोर बैंकिंग क्या है? इन दिस सिस्टम ऑल द ब्रांचेस ऑफ द सेम बैंक, याद रखना, फिर से बोलता हूँ, ऑनलाइन, राइट, कोर का फुल फॉर्म याद रखना। फिर ऐसा कई बार ऐसा होता है, उसकी आपको क्या जरूरत है? बैंक के लिए, राइट, मोस्टली इसका यूज बैंक करती है। ओके, सो सिंपली कोर का यूज है सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, जो आप रियल टाइम एक्सचेंज करते हो वही है। सो ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है वो सब ब्रांचेस के लिए होती है। सो इन दिस सिस्टम ऑल द ब्रांचेस ऑफ द सेम बैंक लोकेटेड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड टू वन अनदर। यानी अगर हम आनंद डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, सो इन आनंद डिस्ट्रिक्ट मोर देन SBI बैंक्स आर 5, 7, चलो ना 7 बैंक है, तो 7 विद इन द सिटी कनेक्टेड है। अच्छा, आनंद डिस्ट्रिक्ट की बात करो तो 50 है, 7 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में उसके तालुका से सबकी मिला के 50 है, तो 50 भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मध्य गुजरात, सेंट्रल गुजरात की बात करो तो 250 है। पूरे गुजरात की बात करो तो 5000 है। पूरे इंडिया की बात करो तो 25000 है। ये तो सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, बाकी ये प्लस माइनस डेटा है। तो ये जो 25000 पूरे इंडिया की ब्रांचेस है, और आउटसाइड ऑफ द कंट्री जितने भी कंट्रीज है उसमें भी है, समझ लो, तो पूरे समझ लो 50,000 उसकी ब्रांच चल रही है। तो ये 50,000 जो भी ब्रांच है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सो ऑल द ब्रांचेस ऑफ द सेम बैंक आर कनेक्टेड विथ ईच अदर विच आर लोकेटेड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। Okay, connected with each other, located in the different type of the areas, but they are connected with one another. So in the centralized server of the bank, उसका एक centralized server है, इसीलिए उसका नाम दिया है centralized। कोर में नाम दिया ना centralized online real time exchange। तो जो centralized server है बैंक का, all the details of all the accounts of all the branches of the all banks are available। याद रखना, all detail of all the account holder of all the branches, all the banks are available at one place। सबके पास सबकी इंफॉर्मेशन होती है, राइट। दे विल नॉट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट टू द अदर्स। हाँ, पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको कोई देते नहीं है, लेकिन उनको मालूम होता है कि ऑल आर कनेक्टेड विथ ईच अदर।
राइट। तो सेंट्रलाइज सर्वर जो है वहाँ सभी डिटेल होती है, ऑल डिटेल्स ऑफ ऑल अकाउंट होल्डर ऑफ ऑल बैंक, राइट, all over world. So entry of the transaction of an account holder of the bank is recorded in the centralized server of the bank in a real time. इसी वजह से उसको बोलते हैं रियल टाइम एक्सचेंज, यानी when you will deposit the money on this spot it will be recorded in that online server. आपके अकाउंट में एंट्री आ जाएगी, यानी ऑनलाइन सर्वर में भी एंट्री आएगी. इफ यू विल विड्रॉ द मनी उसका भी, अगर आपको चेक मिला उसका भी, आपने कुछ पेमेंट किया उसका भी, आपने कुछ रिसीव किया इन द सेंस ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेडर, इन द सेंस ऑफ द पर्टिकुलर फीस, और कोई भी चीज़ आपने रिसीव की, सो इंस्टेंटली रियल टाइम इट इज़ रिकॉर्डेड इन सेंट्रल सर्वर. पहले तो हमको उसको लेजर में डालना पड़ता था और एट द एंड ऑफ द डे ये सब काम होता था, पूरा दिन निकल जाता था. अभी तो ये सब कुछ ऑनलाइन हो गया है. सो द अकाउंट होल्डर ऑफ एनी ब्रांच कैन complete his transactions from any other branch of this bank. So see, all banks have the record of the different clients, so you can use your account in other branch of the your same bank. लेकिन उसमें प्रॉब्लम कई बार ऐसा होता है कि यू हैव टू गिव द इंफॉर्मेशन प्रॉपरली दैट योर अकाउंट इज मेंटेन विथ. आपको जब भी विड्रॉल स्लिप दी जाती है और आप पेमेंट करते हो, कोई भी आप शायद कोई एक डिपॉजिट पैसे करते हो, तो वहाँ लिखा होता है कि योर अकाउंट मेंटेन विथ. तो मेंटेन विथ कहाँ पर वो आपको बताना पड़ता है. कई बार दो अकाउंट सेम जैसे हो जाते हैं और अगर उनको अकाउंट नहीं मिलता तो किसी और में से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, किसी और में क्रेडिट हो जाते हैं. ये सब कुछ प्रॉब्लम रहता है ऑनलाइन में, लेकिन इसीलिए बताया जाता है कि सर्वर से सब कुछ जुड़ा हुआ तो ऑन द स्पॉट इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी. उनके पास मोबाइल नंबर है, दे विल सेंड यू द मैसेज इंस्टेंटली ऑन द स्पॉट. लेकिन चेंज जो एंट्री है, याद रखना, द चेंज इन एंट्री अकरिंग इन दिस सेंट्रलाइज सर्वर कैन बी सीन इन ऑल द ब्रांचेस. सब ब्रांच में दिखेगा. एंड द अकाउंट होल्डर ऑफ एनी ब्रांच कैन कंप्लीट हिज ट्रांजेक्शन फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ हिज बैंक. कभी भी किसी भी ब्रांच से वो काम कर सकता है. एंड ही कैन विड्रॉ डिपॉजिट मनी और कैन डू एनी ट्रांजेक्शन इन हिज अकाउंट फ्रॉम एनी अदर ब्रांच. तो ये सब देखा, मैंने बताया अभी कि कोई भी ब्रांच से वो एक्सचेंज कर सकता है कभी भी, कोई भी टाइम पर. सो द अकाउंट टाइम यानी इन द सेंस ऑफ द नेटवर्किंग. So the account holder becomes the customer of the bank and also not of the particular branch. याद रखना, तो जो भी बैंक है उसका वो कस्टमर है, कोई ब्रांच का नहीं है. मैंने SBI आनंद में अकाउंट खुलवाया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आनंद नियर स्टेशन रोड, और स्टेशन रोड के पास है, समझ लो. तो मेरा अकाउंट वहाँ चला तो मैं उसी का कस्टमर नहीं हूँ, मैं उस बैंक का कस्टमर हूँ. यानी मैं मेरे ट्रांजेक्शन्स पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में भी कर सकता हूँ. मेरे पास अकाउंट नंबर है, राइट, मेरे पास फैसिलिटी है, तो आई कैन यूटिलाइज द फैसिलिटीज. ओके, और मुझे अकाउंट नंबर दिया गया है, मुझे IFSC कोड दिया गया है. आई हैव द डिफरेंट कोड्स. आई हैव माइकर कोड, एक नया है माइकर कोड, अभी आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन MICR दैट इज ऑल्सो कोड. ओके, मेरे पास पिन है, मेरे पास ATM कार्ड है, मेरे पास चेक बुक है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. सो आई एम अ दैट मीन्स के वन कस्टमर इज नॉट ओनली फॉर वन बैंक, इट इज़ फॉर द पर्टिकुलर ब्रांच जो भी है. यानी कि ब्रांच यानी वो बैंक का, हाँ, यानी वो ब्रांच का ही वो कस्टमर नहीं है, सभी बैंकों का, उसकी जो रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेस है सभी ब्रांच का वो कस्टमर है. सो दिस प्रोसेस कैन बी डन इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेम बैंक. ये प्रोसेस जो कोर बैंकिंग का है सिर्फ एक ही ब्रांच के लिए नहीं है, सभी उनकी ब्रांच के लिए होता है. बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट टाइम एंड एक्सपेंसेस ऑफ बोथ द बैंक एंड द कस्टमर्स आर डिक्रीज. दैट इज द मेन बेनिफिट. इसको हम पॉजिटिव वे से ले. सो मोस्ट ऑफ द चार्जेस वर डन बिफोर द पर्टिकुलर 90s और बिफोर दैट 80s 70s. पहले पीछे की देखो तो 2000 तक ये सब चार्जेस हमारे ऊपर ही लगते थे और समय भी बच जाए. उसके साथ समय भी लगता था, एंट्री लगाओ, लाइन में खड़े रहो, पैसे विड्रॉ लो, बहुत टाइम लगता था. तो यहाँ पर अब इस कोर सिस्टम से यानी सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज से ये सब कुछ टाइम बच जाएगा और मेरा आपका पैसा यानी कि बैंक और कस्टमर का पैसा भी बचेगा. सो दिस इज द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फॉर आवर कोर बैंकिंग. अब थोड़े बहुत पॉइंट बाकी है, राइट. आई कैन कवर अप इन दिस सेशन बट आई विल कंटिन्यू विथ नेक्स्ट, बिकॉज उसके बाद बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, दैट इज़ ATM क्रेडिट कार्ड डेबिट का. तो उसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे और उस टाइम पे भी हम उसको रिपीट करेंगे, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो मुझे बतानी है. देन आफ्टर आई विल कंप्लीट द एक्सरसाइज 2. ओके, सो ई-बैंकिंग देख लेते हैं. ऐसा है तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन है ई-बैंकिंग की, सो उसके बाद हम एक्सरसाइज भी कवर कर सकें. चलो, ई-बैंकिंग दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, राइट. इसमें कुछ नया नहीं है. In this present time, all banks are connected through internet to their branches by the medium of server. सर्वर से सब जुड़े हुए हैं.
सो अ पर्सन कैन विड्रॉ डिपॉजिट मनी फ्रॉम एनी अदर ब्रांच रिगार्डलेस ऑफ हिज होम ब्रांच। तो मैंने बोला स्टेशन रोड एसबीआई में मेरा अकाउंट है, तो मैं वहीं से ही पैसे विड्रॉ कर सकता हूँ, डिपॉजिट कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक केयर करनी है कि मुझे लिखना पड़ता है व्हेन आई विल डिपॉजिट द मनी कि माय अकाउंट इज मेंटेन विद सो एंड सो ब्रांच। ओके, सो पर्सन कैन विड्रॉ और डिपॉजिट मनी फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ दैट्स बैंक, सेम बैंक है, उनके बैंक में से होना चाहिए, वो पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर भी हो, होम ब्रांच के जरूरी नहीं वहाँ से विड्रॉ करो। बैंक्स हैव एस्टेब्लिश्ड देयर ई कॉर्नर एंड ई गैलरीज एट डिफरेंट प्लेसेस, उनके खुद के ई कॉर्नर ई गैलरीज है, बाय मीन्स ऑफ विच द कस्टमर कैन आइदर विड्रॉ और डिपॉजिट मनी फ्रॉम हिज अकाउंट थ्रू हिज ATM कार्ड विद द हेल्प ऑफ मशीन। सो because of that e-corner e-gallery, that is the main use of that e-corner e-gallery, you can utilize that facility from any of the part of the world. I'm talking about the world, but you can use the particular state, you can utilize the particular district, जहाँ भी आप चाहते हो वहाँ से आप डिपॉजिट की हुई मनी विड्रॉ कर सकते हो। सो ऑल्सो वो कहीं से भी पैसे विड्रॉ कर सकता है, कहीं पर भी पैसे डिपॉजिट कर सकता है मशीन का यूज़ करके। ये फैसिलिटी शायद हम बहुत कम करते हैं डिपॉजिट करने की। ओके, थोड़ा रिस्क लगता है, पहले था उसका फैसिलिटी, एक्सिस से शुरू किया था, सब कई फैसिलिटी एक्सिस ने शुरू की थी कि यू कैन डिपॉजिट ऑल्सो मनी थ्रू द ATM। आपको अकाउंट नंबर लिखना है, उसकी चीट आपको रखनी है अपने पास, फिर सामने वाले को पैसे मिल जाएंगे, वो डिपॉजिट भी कर देंगे, लेकिन वो थोड़ा रिस्क बढ़ जाता था, तो डिपॉजिट मनी अब हम नहीं करते, लेकिन हाँ हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली अब ATM से। सो विड्रॉ डिपॉजिट मनी फ्रॉम द अकाउंट होल्डर फ्रॉम ATM मशीन से हम यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो द पर्सन कैन ऑल्सो नो, सो ही कैन ऑल्सो नो द बैलेंस इन हिज अकाउंट बाई दिस सिस्टम। अब इसकी तो कोई ज़रूरत रहती ही नहीं है, क्योंकि वी आर गेटिंग द SMS। ओके, चार्जेस भी हम पे करते हैं, और कई बैंक फ्री ऑफ कॉस्ट भी फैसिलिटी देती है। वैन यू विड्रॉ द मनी एक्जैक्टली जितना विड्रॉ किया वो और कितना बैलेंस बचा है वो भी आपको मिल जाएगा। ऐसा भी नहीं करना है, देयर इज़ नो नीड टू टेक द बेनिफिट ऑफ द SMS, यू कैन क्लोज दैट वन। ऑल्सो यू कैन स्टार्ट विथ योर एप्स ऑफ दैट बैंक, उसमें भी आपको बैलेंस दिखता है। सो डिफरेंट फैसिलिटीज आर देयर ऑफ द ई-बैंकिंग। हम अगर ई बैंकिंग की बात करें तो ऑनलाइन हम सब देख सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स द बैंक ऑल्सो रजिस्टर्स द अकाउंट होल्डर्स मोबाइल नंबर, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द मैसेजेस टू यू ऑन विच द कस्टमर रिसीव्स मैसेजेस वेन एवर देर इज एन ट्रांजेक्शन, देर इज एनी ट्रांजेक्शन इन हिज अकाउंट। सो जब भी आप कोई पेमेंट करते हो, कोई पैसे रिसीव करते हो, यू विल गेट इंस्टेंट मैसेज ऑन दिस स्पॉट, जितना क्रेडिट डेबिट हुआ उसके साथ मैसेज मिल जाएगा। सो बैंकिंग वर्क बिकम्स ईजी बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। तो इसी सिस्टम की वजह से, इसीलिए हम बैंकिंग सिस्टम पे ट्रस्ट करते हैं और वो ज़्यादा अच्छी हो गई है, यानी वी आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम ऑल्सो। ओके, सो ये बात हो गई है ई बैंकिंग की। अब यहाँ से हम आगे बढ़ना चाहे तो समझ लो कि कोई और कुछ नया अब बैंकिंग सिस्टम में आने की अब आवश्यकता हो सकती है। हम कार्ड का यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, है ना। मुझे तो लगता है थोड़े बहुत समय में शायद चिप भी आ जाएगी, डायरेक्टली आप उसको कुछ यूज़ कर सको। डिपेंड करता है ये सब, है कैसा क्या होगा। लेकिन अगर हम देखना चाहिए तो ये सिस्टम बहुत ही अच्छी है, और सही तरीके से देखना चाहे तो बैंकिंग सिस्टम बहुत आगे निकल गई है। अब यहाँ पर एक पॉइंट कनेक्टेड है मोबाइल बैंकिंग, लेकिन आई विल डिस्कस बिकॉज सब कुछ सेम होता जा रहा है। सो आई विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट सेशन। सो फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।